Hello students, welcome back to our social science class. As we discussed French Revolution, okay, in previous part we were discussing rights of man and citizen. Who was the right? In previous part we already discussed 5 rights given by the French National Assembly. Okay, why these rights given to the common citizen? What was the aim to provide basic right to the common citizen? The main aim of the French Revolution was to provide liberty, freedom, equality and fraternity. Okay, these were the basic rights to provide all the citizens of France. To provide them, this is the main aim to give rights. First, let's revise 5 rights we already discussed in previous video. First was every citizen is equal and free. Okay, every citizen is equal and free. And second is sovereignty lies in the nation. Everyone should respect their nation, cultures and the citizen of France. And third was that it is a duty of the political group, political party to provide security, freedom to the basic rights, to preserve basic rights of the common citizen. This was the duty of political group of party of the French area. Okay, and fourth was liberty. And you have right to do any work you want to do, but your liberty will be bounded if you do any work which is injurious to the others. And the fifth and last we discussed in that video is that it is the duty of law only. It means it is the duty of judge to forbid and take action if you do any work which is injurious to the society. These 5 rights we discussed in the previous video. We revised 5 and next 5 we will do today. First is law is the expression of the general will. It means that it is the duty of law. Okay, नेशनल असेंबली टू जो भी आप लॉ फ्रेम होंगे फ्रेंच में वो किन के अकॉर्डिंग होंगे? जनरल विल. अब जनरल विल के अकॉर्डिंग अगर आपको लॉ फ्रेम करने हैं तो वहां पर तक आपकी बात कैसे जाएगी? नेशनल असेंबली तक. हमने प्रीवियस स्टडी में देखा था कि जो एक्टिव सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं 50,000 और 50,000 अपने क्या कर रहे हैं? मेंबर चूज कर रहे हैं लेजिस्लेटिव में हु विल फ्रेम द लॉ. ओके, अब हमने जो हमारा सिविक्स चैप्टर फर्स्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड नॉन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इन व्हाट इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इफ द प्रेसिडेंट वांट द व्यू ऑफ द सिटीजन ही विल टेक डायरेक्ट वोट. ओके, बट in the representative democracy our representative do what in behalf of common citizens. Okay, there are 2 type of you can participate in the legislature. First is direct, if you take direct vote regarding to frame any type of law, and second is representative democracy in which your representative do work in the behalf of your. दिस इज द मेन पॉइंट दैट जो भी लॉ आपके फ्रेम होंगे वो किन के अकॉर्डिंग होंगे? जनरल विल के अकॉर्डिंग होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट लॉ इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन किन के होंगे? वो जनरल विल के अकॉर्डिंग होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन क्लास डिटरमाइंड बाय द लॉ. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप किसी भी पर्सन को जब तक एक्यूज या अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसने कोई ऐसी एक्टिविटी ना की हो जो लॉ के अगेंस्ट हो. ठीक है. अब आपने देखा था जैसे क्या है, राजू किंग्स फैमिली से मोनार्की सिस्टम से बिलोंग करते थे. क्या अगर आप उनके अगेंस्ट, किंग के अगेंस्ट बोलते थे वो आपको पनिशमेंट दे देते थे डायरेक्ट. बट यहाँ पर क्या बात कही गई है, अगर किंग किसी पर्सन को पनिश करना चाहता है तो आप डायरेक्ट उसको पनिश नहीं कर सकते. ठीक है. अगर किसी पर्सन ने इस तरह की एक्टिविटी की है जो लॉ के अगेंस्ट हो तभी आप उसको क्या कर सकते हो? पनिश कर सकते हो. अपनी चॉइस, अपनी विल के अकॉर्डिंग आप किसी को पनिश नहीं कर सकते.
No man may be accused or arrested or detained except in class determined by the law. Okay. Next is every citizen may speak, write and print freely. यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मोनार्की सिस्टम है उसमें क्या है, जो कॉमन सिटीजन को अपने फ्रीली चॉइस, अपनी बात कहने का कोई भी राइट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया इस तरह का राइट कि जो कॉमन सिटीजन है, अगर उनको कोई बात गलत लगती है, इफ दे फील दैट दिस लॉ इज रॉन्ग, दिस एक्टिविटी इज अगेंस्ट टू अवर राइट, दे हैव चॉइस टू फ्रीली प्रिंट, स्पीक एंड राइट। इफ दे आर इलिटरेट, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो स्पीक करके, बोल के अपना जो गुस्सा है, अपना जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे हैव फ्रीली टू चूज द एनी टाइप ऑफ वर्क। एवरी सिटीजन में बी स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। नेक्स्ट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीपल फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, फ्रेंच में है, ठीक है, अगर फ्रेंच गवर्नमेंट वांट टू ओपन अ न्यू स्कूल, अ न्यू कॉलेज, न्यू हॉस्पिटल, न्यू एक्टिविटी, न्यू डिपार्टमेंट, फ्रॉम वेयर दे विल गेट मनी एंड they also have work to maintain all the department of the French, ठीक है। this money they will get from the tax, ठीक है। आपने स्टडी किया कि जो थर्ड स्टेट के जो पर्सन थे वो टैक्स पे करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, लास्ट में जो 1789 के टाइम पे क्या कहा गया था कि ऑल आर इक्वल, ठीक है। बहुत सारे जो कलर्जी फैमिली स्टेट से बिलोंग करते थे, जो नॉर्मल, उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे क्या थे राइट्स थे वो उनको डिनाई करना पड़ा था बिकॉज ऑफ नेशनल असेंबली। अब यहाँ पर जो भी मनी है वो कहाँ से गेन कर रहे थे, वो कॉमन टैक्स से वो गेन कर रहे थे, ताकि जो भी पब्लिक के लिए वर्क किया जाए उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अच्छे से एक्सपेंस किया जाए, खर्चा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट, नो वन में बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। अब यहाँ पर क्या है कि नॉट ओनली कलर्जी स्टेट और नोबल स्टेट, even third estate person have right to gain property and restore property for their future, for their old days, for their generation. It is the important right for the secure life. Okay, for the secure life, it is the basic right of every citizen of France to gain or extend their property. Property is sacred and inviolable right. No one may be deprived of it. If you want to extend your property, you have right to extend your property. Okay, these are the 10 law which provide by the National Assembly of France. 6 was to law is expression of general will. General will के अकॉर्डिंग क्या होंगे, लॉ फ्रेम होंगे। किसी भी पर्सन को तब तक एक्यूज और अरेस्ट नहीं किया जाता जब तक वो कोई भी वर्क ऐसा नहीं करते जो लॉ के डिटरमाइन में नहीं है। Next is every citizen speak, write and print freely. Next is for the maintenance of the public force, for the expenses of administration, common tax is intensible. अब next is property sacred and inviolable right. One may be deprived of it. No one may be deprived of it. I hope you understood all the rights given by the National Assembly. What was the aim? To provide equality, freedom and fraternity to the citizen of France. Thank you and have a nice day.